Good morning, student. Today's topic is types of redox reaction. What topic? Just you note down in your notebook types of redox reaction. Okay, types of redox reaction. Now we are discussing about first. Before my lecture, I am discussing about oxidizing agent and reducing agent. Just again, I am revising. OEA and red. OEA means oxidizing agent, electron acceptor. Oxidizing agent, electron acceptor, and reducing agent, electron donor. So electron oxidizing agent, E for electron and A for acceptor. Yes, acceptor. तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है? मीन्स रिडक्शन. इसमें रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन इज व्हाट डेफिनेशन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो रिडक्शन. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल्सो known as reduction. Clear? And reducing agent is what? Reducing agent, electron donor. So electron donor means lose of electron. तो lose of electron कौन करता है? Oxidation. तो reducing agent means oxidation. Clear all of you? Okay. Now my first type of reaction. This is a thermal decomposition reaction. You note down in your notebook. I am just only for the reaction. I am just only write the reaction, not heading. This is the first reaction, thermal decomposition redox reaction. Now suppose you have the reaction Ag2O gives 2Ag plus half O2. The half O2 you know very well. This two cancel. Only one oxygen is there. Now this is a valence reaction. Okay, now how to consider this reaction show redox reaction? Now first you find the oxidation number of Ag. Okay, you know, just this is 2x and the oxygen is -2 is equals to 0. So 2x is equals to 2. Now x is equals to +1. Now the oxidation number of Ag is +1 and you know oxygen oxidation number -2. Okay, clear? And single elementary element oxidation number always 0. This is also 0. Clear all of you? Okay. I am just again writing this reaction. Ag2O gives 2Ag plus half O2. Okay, clear? So this Ag plus 2 and this is -2. This is 0, 0. This Ag to this Ag. Because Ag is there ना, तो रिलेशन हम करते हैं. There is a +2 and there is a 0. It means oxidation state increases or decreases? Decreases. It means reduction. And this O to this O, there is a -2, there is a 0. It means oxidation state increases. It means oxidation. Now this Ag2O show oxidizing as well as reducing agent because only one element there. So this Ag2O show oxidizing agent and reducing agent because both are there na. In Ag2O, Ag show oxidizing agent and oxygen show reducing agent. Clear? Ag क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो. Ag का क्या हो रहा है? रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और O का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. इट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर? तो नाउ दिस इज अ फुल कंपाउंड. तो दिस कंपाउंड शो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट type of reaction is displacement reaction. Displacement you know, this is also a substitution reaction. The Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2. Clear? देखो single element is there, it means zero oxidation. This is also 0. Now you know very well. देखो किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर में हम उसका ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, दिस 2 इज अ
स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दिस इज नॉट कंसिडर इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको कंसिडर नहीं करते, दिस इज ओनली फॉर द बैलेंस रिएक्शन, हमें मतलब है ओनली फॉर HCl। तो यू नो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज +1 एंड Cl इज -1। नाउ अगर इसका फाइंड करना है ZnCl2 का, तो इसको x मान लो, एंड देयर इज अ 2Cl, इट मीन्स -2, तो x -2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स +2, एंड क्लोरीन इज व्हाट, -1। अब देखो कॉमन रिएक्शन को हम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, दिस इज -1, दिस इज -1, तो Cl का रिलेशन नहीं होगा, दिस इज ओनली फॉर Zn टू दिस Zn, तो दिस Zn ऑक्सीडेशन नंबर 0 एंड दिस Zn इज +2, इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, oxidation state increases, it means oxidation, and this hydrogen is +1 and this hydrogen is 0, it means oxidation state decreases, it means reduction. Clear all of you? Now this Zn show oxidation means what, reducing agent, and this HCl is show oxidizing agent. Clear? Reducing agent means oxidation and oxidizing agent means reduction. Clear? This is the second. Now suppose you have examples, again one example is there, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. Clear? The oxidation number 0, same 0. Clear? Now you know very well the SO4 oxidation number is -2. SO4 oxidation number is -2. मैंने जूम क्लासेस में लिखवाया था, SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2। ओके, तो -2 इसका होगा, तो डेफिनेटली कॉपर का क्या होगा, +2, सल्फर का वैसे होता है +6, ऑक्सीजन -2, एंड दिस इज +2, दिस इज +6 -2। अब कर सकते हो फाइंड सबका अलग अलग। अब सपोज मान लो कि कैसे फाइंड करना है, तो सल्फर को यहाँ पे 6 लेके चलना होगा, कॉपर को x मान लो, दिस इज 6 एंड 2 into 4 -8 +6 -2 इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा, +2। क्लियर? तो देखो दिस 6 और दिस 6 का कोई रिलेशन नहीं, दिस -2 एंड दिस -2 नो रिलेशन। तो इस Zn का इस Zn से क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, इट मीन्स ऑक्सीडेशन, एंड दिस कॉपर टू दिस कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, इट मीन्स रिडक्शन। So Zn show is what, reducing agent, and CuSO4 is what, oxidizing agent. अब देखो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, मतलब ये हमें तो अभी जस्ट हम लोग ने इसको पढ़ा, लेकिन सपोज यू हैव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, Cu plus ZnSO4, this Cu plus ZnSO4 gives CuSO4 plus Zn. But this is a wrong reaction. And how to find? कैसे हम पता करें कि दिस इज रॉन्ग और राइट रिएक्शन? देखो अभी जस्ट मैंने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी है, नाउ चेक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, उसमें देखो कॉपर की पोजीशन ऊपर है कि जिंक की पोजीशन ऊपर है, जिंक की पोजीशन ऊपर होगी, देखना। यस, द पोजीशन ऑफ जिंक, चेक करो आप लोग एक बार फिर से, मैं जब तक यहां पर वेट करता हूं। यस, क्लियर ऑल ऑफ यू? तो देखो जिसकी पोजीशन ऊपर होती है, अगर जिंक यहां पर ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो जिंक कॉपर के सॉल्ट से SO4 को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर यहां पर है और जिंक बाद में, यानी कॉपर की पोजीशन जिंक से ऊपर, यानी कि कॉपर रिप्लेस कर रहा है ना SO4 को, तभी तो CuSO4 बन रहा है। तो याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट नोट्स, कि कोई भी एलिमेंट रिडक्शन पोटेंशियल में अगर उसकी सीरीज ऊपर है तो वो नीचे वाले एलिमेंट्स के सॉल्ट को रिप्लेस कर सकता है। अब देखो कैसे, जिंक यहां पर अभी तक क्या कर रहा था, देखो जिंक का क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन, यानी जिंक हमेशा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर जिंक देखो क्या हो रहा है, इसका 0 होगा, इसका +2 अगेन, बाकी तो कॉमन है, इसका भी +2, इसका 0। इस जिंक का यहां पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, इट मींस रिडक्शन। जिंक कभी रिडक्शन शो ही नहीं करता। क्लियर ऑल ऑफ यू? और कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता कॉपर का ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर की पोजीशन नीचे है। जो नीचे होती है वो हमेशा किसमें सपोर्ट करता है? रिडक्शन पोटेंशियल में, रिडक्शन में। क्लियर? तो अगर ये रिएक्शन ऐसे होता, देखो, तो इस कॉपर का क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है? देखो, रिडक्शन। यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सो दैट यहाँ फिर समझो कि जिसकी पोजीशन रिडक्शन पोटेंशियल टेबल में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में जिसकी पोजीशन ऊपर होती है, वो नीचे वाले एलिमेंट के सॉल्ट्स को क्या कर सकता है? रिप्लेस। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, F2 plus Ki gives Kf plus I2। अब देखो ये रिएक्शन राइट है कि रॉन्ग है ये भी पता चल जाएगा। देखो फ्लोरीन की पोजीशन सबसे ऊपर है, यस। देखो हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और उसकी वैल्यू देखो वहां पे कॉर्नर पे दिया होगा, पॉजिटिव वैल्यू में गिवन होगी वैल्यू। तो फ्लोरीन का क्या होगा? इसका अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये फ्लोरीन हमेशा क्या करेगा? रिडक्शन में सपोर्ट करेगा। भाई रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो रिडक्शन में ज्यादा सपोर्ट करेगा। और आई की पोजीशन कहां पर है? देखो नीचे की तरफ, तो यानी ये किस में करेगा? ऑक्सीडेशन में सपोर्ट करेगा। अब देखो करके देखो, F2 का क्या होता है? 0। इसमें K का क्या होगा? +1, आयोडीन का -1, सेम K का +1, F का -1, और सिंगल एलिमेंट है तो 0। तो देखो दिस F टू दिस F क्या हो रहा है? 0 to -1, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, इट मींस रिडक्शन। यस, क्लियर? एंड दिस I -1 to 0, दिस I to -1 to 0 क्या हो रहा है? -1 से 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, इट मींस ऑक्सीडेशन। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, डन। अब देखो इसी को अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता, I2 plus Kf gives Ki plus F2। बैलेंस रिएक्शन नहीं, बैलेंस कर लेना, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो इसका 0, इसका -1, इसका +1 -1, इसका 0, इसमें K का +1 होगा। देखो K का रिलेशन नहीं होगा। इस I2 से इस I में देखो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, इट मींस रिडक्शन। यानी यहाँ पे फ्लोरीन ऑलरेडी है तो फ्लोरीन का क्या होना चाहिए था? रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे आयोडीन का हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया? रॉन्ग। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, डन। आगे क्वेश्चन गिवन है, उसको अपने आप से सॉल्व करना। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। पूछा है कि विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? I2, Br2, Cl2 एंड F2। तो पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? रिडक्शन। तो सबसे अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है? अभी मैंने बताया था। सबसे ऊपर सीरीज में कौन सा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे अच्छा होता है? कौन सा होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे अच्छा होता है? I2, Br2, Cl2 एंड F2 में सबसे अच्छा, यहां पे मैं फिर से लिखता हूं, I2, Br2, Cl2 एंड F2। तो रिडक्शन पोटेंशियल में देखो टेबल में सबसे अच्छा किसका होता है? सबसे ऊपर कौन सा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या होगा? इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसका रिडक्शन SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद देख लो कौन सा एलिमेंट उसके नीचे है, तो उसके ऑर्डर में फिर वो होगा। सपोज अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा तो आयोडीन। क्लियर? ओके, डन ऑल ऑफ यू। ओह, नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड इज अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यू नो वेरी वेल, दिस इज ऑल्सो अ एडिशन रिएक्शन। तो दिस इज अ Mg plus N2। देखो अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, जस्ट ओनली राइट द रिएक्शन। सपोज यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप इसको बैलेंस कर लेना। तो देयर इज अ Mg plus N2 gives Mg3N2। दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो देखो सिंगल एलिमेंट है 0 0, इसका क्या होगा? Mg का करके देख लो, यहाँ पे x मान लो या इसको x मान लो। देखो करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। सपोज Mg3N2, अब Mg का फाइंड करना है या N का फाइंड करना है।
हमेशा मेटल और नॉन मेटल में जो दिया होगा नॉन मेटल का फाइंड करना। Mg इज अ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो देखो 2 × 3 + 2x, देयर इज नो चार्ज इज इक्वल टू 0, तो 6 + 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -3, यस -3। तो देखो मैग्नीशियम को कितना लिखा था हम लोगों ने +2, नाइट्रोजन का क्या आया -3। अब ये मत बोल देना कि 3 मैग्नीशियम है तो +6, मैग्नीशियम चाहे जितने भी हो ऑलवेज शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे Mg का 0 से इस Mg का रिलेशन क्या होगा, 0 to 2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, इट मींस ऑक्सीडेशन। अब इस N2 से इस N2 को क्या हो रहा है, देखो इस N2 से इस N2 को क्या हो रहा है, 0 to -3 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजेस, इट मींस रिडक्शन, यस। तो Mg क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और N2 इज अ रिडक्शन, इट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Ca + O2 गिव्स CaO। बैलेंस कर लेना आप, इसका भी 0 इसका भी 0। कैल्शियम का क्या होता है +2, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, और ऑक्सीजन का -2, तो दिस Ca to दिस Ca ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, इट मींस ऑक्सीडेशन, and this O to this O oxidation state decreases, it means reduction. Clear all of you? अब इसमें आप क्लासिफाई कर सकते हो कि विच इज ऑक्सीडाइजिंग एंड विच इज रिड्यूसिंग। देखो जो ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। द नेक्स्ट नंबर 4, दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर सपोज ऐसा रिएक्शन दिखे जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में सपोर्ट करता है, वही एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में सपोर्ट करेगा। देखो जो सपोज P4 + NaOH गिव्स PH3 + NaH2PO2। क्लियर। अब देखो इस सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यू नो वेरी वेल, Na का होता है +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, डायरेक्टली लिख सकते हो। अब यहाँ पे फॉस्फोरस क्या है, हाइड्रोजन देखो क्या है, हाइड्रोजन क्या होता है +1, तो देयर इज अ 3 + 1, तो इक्वल के उधर जाएगा, तो ये फॉस्फोरस का क्या आएगा -3, करके देख लो, x मान लेना इसका +1, इसका क्या होगा +1, इसमें करके देखो, इसमें फॉस्फोरस का निकालो, बाकी तो कॉमन होगा, तो Na का +1, हाइड्रोजन का +2 यानी 3, और ऑक्सीजन का होगा -4, तो यानी आंसर आएगा +1 फॉस्फोरस का। करके देखो अब बैलेंस। अब देखो इस फॉस्फोरस, यहाँ पे भी फॉस्फोरस है, यहाँ भी फॉस्फोरस है, यहाँ पे, तो मैंने ये फॉस्फोरस, मैंने डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में सपोर्ट करता है। देखो इस Na का कोई रोल नहीं, इस ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं, इस हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Na का +1, तो यहाँ भी Na का क्या होगा +1, करके देख लेना आप। तो देखो दिस फॉस्फोरस का इस फॉस्फोरस से शो करते हैं, तो दे आर 0 and -3 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस यानी रिडक्शन, एंड दिस फॉस्फोरस ऑल्सो शो, इसके साथ करो, इस फॉस्फोरस के साथ, तो देखो यहाँ 0 to +1 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस यानी ऑक्सीडेशन, यानी ये फॉस्फोरस क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में सपोर्ट करता है। क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके में देखना, 2 एग्जाम्पल मैंने अलग से नोट्स में है, तो नाउ दिस इज योर होमवर्क। क्लियर। नाउ द 5th पार्ट, दिस इज अ कॉम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑलरेडी इन माई नोट्स। ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है डिसप्रोपोर्शनेशन का। डिसप्रोपोर्शनेशन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में होता है, और कॉम डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के साइड पे होता है। तो देखो कैसे, एग्जाम्पल H2S + SO2 गिव्स H2 + H2O। देखो जस्ट अपोजिट है, यहां पे देखो फॉस्फोरस से यहां पे है अपोजिट में। इस सल्फर जो सिंगल है इसका 0, इस सल्फर का करोगे तो ऑक्सीजन का -2, तो -4, इसका हो गया +4, इसका +2, तो इसका हो गया -2। क्लियर। अब देखो इस सल्फर से इस सल्फर का रिलेशन देख लो, -2 to 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, इट मींस ऑक्सीडेशन, यस, एंड दिस +4 to 0 यानी क्या हो रहा है, देखो दिस +4 to 0 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, इट मींस रिडक्शन। अब बताओ
ऑक्सीडाइजिंग स्टेट इंक्रीजेस यानी ऑक्सीडेशन इसका, तो H2S किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग, जो ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा, और SO2 यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो फर्स्ट यू राइट डाउन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होता है। जो ऊपर होता है उसका हमेशा रिडक्शन, जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन। क्लियर? ओके, थैंक यू।